is great. It is the highest rated accounting qualification in India. No doubt about it. But if your dream is to go global, if you want to work for global companies, global MNCs, Big Fours, then these are the three qualifications जिनके बारे में आपको definitely पता होना चाहिए. ACCA, USCMA, CFA. बिग फोर्स में जाके बड़ी कंपनीज का ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैंडल करना है, ACCA करो. Amazon या गूगल के अंदर कॉर्पोरेट बजटिंग या डिसीजन मेकिंग चलाना है, फास्ट ट्रैक रूट पे USCMA करो. JP Morgan में बैठकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, इक्विटी रिसर्च करना है, देन CFA करो. ACCA क्वालिफिकेशन की, which I call the global passport. ऐसा क्यों है? Because this qualification is recognized across the globe. 180 countries में ACCA को recognize किया जाता है. Why so? Because it is based on IFRS. What is IFRS? International Financial Reporting Standards. ACCA के career portal पे जाओ. 110% these big fours will be actively hiring for ACCA professionals. Moreover, आपको मिलेंगी global giant companies like GT, Shell, Barclays, Standard Chartered. अगर आपको लगता है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ CA ही एक ऑप्शन है, तो ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देगा. Undoubtedly, CA is great. It is the highest rated accounting qualification in India. No doubt about it. But if your dream is to go global, if you want to work for global companies, global MNCs, Big Fours, then these are the three qualifications जिनके बारे में आपको definitely पता होना चाहिए. ACCA, USCMA, CFA. The problem with today's students is the problem of plenty. Actually, इंटरनेट पे हर क्वालिफिकेशन परफेक्ट लगती है. रील्स को देख के, वीडियोस को देख के लगता है yes, this is probably the dream qualification for me, the right qualification for me. But definitions, jargons and fancy terms देखकर समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में आपके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन सही है. सबसे पहले एक पाथवे बताती हूँ, on the basis of which we will decide कि हमें कौन से करियर पाथ को चूज करना है, कौन सी क्वालिफिकेशन fills that dream career role that you are thinking about. आज आप और मैं मिलकर यही डिसाइड करेंगे कि कौन सी ग्लोबल क्वालिफिकेशन is probably the right qualification for you. सबसे पहले शुरू करते हैं ACCA क्वालिफिकेशन की, which I call the global passport. ऐसा क्यों है? Because this qualification is recognized across the globe. 180 countries में ACCA को recognize किया जाता है. Why so? Because it is based on IFRS. What is IFRS? International Financial Reporting Standards. ये एक ऐसी international accounting language है जिसको most of the parts of the globe, 180 countries to be precise, recognize करती हैं, follow करती हैं. That is why this is called the global passport. Simple भाषा में अगर बात करूँ तो अगर आपको accounting, audit, corporate tax पसंद है, but आपको local नहीं global खेलना है, then ACCA is your vibe. It's basically like an Indian CA that has a global cousin, you can say, which is recognized in 180 countries. Vibe क्या है? Proper corporate professional vibe है. Now let's discuss कि job कहाँ पर मिलेगी. Definitely the big fours, the चार धाम of accountants, EY, Deloitte, PwC, KPMG. ACCA के career portal पे जाओ. 110% these big fours will be actively hiring for ACCA professionals. Moreover, आपको मिलेंगी global giant companies like GT, Shell, Barclays, Standard Chartered. रोज के रोज ये कॉर्पोरेट्स अपनी जॉब और अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं ACCS के लिए. एंट्री लेवल की अगर इन कंपनीज में बात करूं तो इजीली यू कैन एक्सपेक्ट से अबाउट 6 to 8 lakhs per annum. बट क्या सिर्फ और सिर्फ जॉब मिलेगी ACCA करके इंडिया में, क्योंकि लोकल तो CA ही किंग है?
Actually not. In today's time and age, India is called the GCC capital of the world. GCC क्या है? अगर नहीं पता तो प्लीज सुनो. GCC इज द ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, विच मीन्स जितने भी बाहर की कंपनीज हैं उन्होंने अपने कैपेबिलिटी सेंटर्स, उन्होंने अपने बिजनेसेस को आउटसोर्स कर रखा है इंडिया में. पहले जैसे इंडिया में बहुत सारे BPOs और KPOs खुले थे. That is not what a GCC is. GCC is actual management of the work. मतलब सिर्फ टेलीकॉलिंग का काम इंडिया से नहीं हो रहा है. Actually फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के ऑपरेशंस इंडिया से हैंडल हो रहे हैं. That is what GCC is, and India is the finance capital of the world in terms of GCC. तो अगर ACCA की एलिजिबिलिटी की बात करूँ, यू कैन स्टार्ट विद ACCA राइट आफ्टर योर क्लास 12th ऑल्सो. हाँ, 11th और 12th में भी शुरू कर सकते हो वाया दी FIA रूट, उसको सेपरेटली बताऊंगी. बट क्लास 12th इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट विद योर ACCA जर्नी. अब बात करते हैं सेकेंड कंपैरेटिव क्वालिफिकेशन की, विच इज द USCMA. दैट आई कॉल द कॉर्पोरेट फास्ट ट्रैक. ACCA अगर चूज करोगे तो यू विल टेक अ मिनिमम ऑफ से अबाउट 2 to 3 years टू क्वालिफाई योर ACCA जर्नी, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टार्टिंग पॉइंट. बट अगर आपको लगता है कि भाई इतने साल की पेशेंस तो मुझ में नहीं और मुझे तो जल्दी से कॉर्पोरेट लैडर को स्टार्ट करना है अपने, देन गो फॉर द USCMA क्वालिफिकेशन. तो अब बात करते हैं अबाउट द USCMA क्वालिफिकेशन. दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसका मतलब आप बीते हुए कल का हिसाब नहीं रखते हो, बट यू आर समवन who is making the fast forward, the futuristic strategy for the organization. Total vibe की अगर बात करूँ तो it is the smart business strategist. और जॉब्स की बात करें तो cool tech giants या corporate elites like Amazon, Google, Apple, Wipro, HP, Johnson and Johnson, they actively hire for USCMAs in India as well. Now let me very quickly brief you with the syllabus update of 2026. Exam format of USCMA exams is completely changing from 2026. पहले जो linear essay type questions आते थे, अब उनकी जगह आएंगे relevant case-based questions, which are not just going to test your knowledge, बट ये टेस्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन. दिस ब्रिंग्स इन इंटरैक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप, सिनेरियो बेस्ड न्यूमेरिकल एंट्रीज के साथ. सो एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी मच कॉर्पोरेट लाइक. एक रियलिटी चेक देती हूँ. अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि USCMA में सिर्फ 2 एग्जाम्स हैं, 3 एग्जाम विंडोज हैं, तो सर्टेनली आप मतलब विद इन 6 months क्वालिफाई कर जाओगे. प्लीज, दैट इज नॉट करेक्ट. इट इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक. डू नॉट फॉल फॉर इट. Yes, USCMA only has 2 parts, but each subset has 6 individual subsets, which means कि knowledge comprehensive है. अगर आपको इसका एग्जाम क्लियर करना है, you will need time to dedicate towards the exam. तो अगर रियलिस्टिक टाइमलाइन की बात करूँ तो USCMA के दोनों पार्ट्स क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल लगेगा. So please keep that time horizon in mind before enrolling for the qualification. अब बात करते हैं थर्ड क्वालिफिकेशन की, which is CFA. Yes, the Wall Street heavyweight. सबको वो कॉर्पोरेट सूट बूट पहनकर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है. Then this is the pure vibe for it. प्योर मनी माइंडेड लोग यहाँ ध्यान रखो. वैल्यूएशन रहेगा, स्टॉक मार्केट रहेगा, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की नॉलेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अगर ये सब सुन के आपके दिमाग एक्टिव होता है, देन CFA मटेरियल आप डेफिनेटली हो. इट्स द अल्टीमेट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. टोटल वाइब की बात करूँ तो द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट. हमारे वाला नहीं, US वाला वॉल स्ट्रीट. कौन सी कंपनीज में जॉब्स मिलेंगी? इट इज़ द एब्सोल्यूट फाइनेंशियल एलीट लाइक गोल्डमैन सैक्स, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC. These are the companies who are actively hiring for CFAs.
साउंड्स इंटरेस्टिंग, साउंड्स ल्यूक्रेटिव, बट एक रियलिटी चेक की बात करती हूँ जो कि क्लास 12 के बच्चों को मैं डेफिनेटली बताती हूँ। जस्ट आफ्टर क्लास 12 अगर आप CFA स्टार्ट करना चाहते हो तो पहली चीज़ तो आपकी एलिजिबिलिटी मीट नहीं होगी। दूसरी चीज़, आई थिंक यू आर टू नाइव टू गेट इनटू दिस सेगमेंट इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12। सबसे बेस्ट रूट क्या रहता है कि इस टाइम पे, बिकॉज क्लास 12 के बच्चों को इतना एक्सपोजर नहीं है, उनका माइंड इतना क्लियर नहीं है कि भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करनी है। सो व्हाट यू शुड डू इज चूज अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ अ क्वालिफिकेशन, जैसे कि ACCA है या USCMA है। इन क्वालिफिकेशंस को करके आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होते हैं। यू कैन गेट इनटू अकाउंटिंग, यू कैन गेट इनटू फाइनेंस एज वेल, एंड नॉट जस्ट ओनली नीश फाइनेंस लाइक CFA। तो जिसे हम बोलते हैं कि मतलब व्हाट आई पर्सनली एडवाइस ऑल द स्टूडेंट्स इज कि अभी आप एक ब्रॉडर क्वालिफिकेशन को चूज करो, विच इज मे बी ACCA या USCMA। 3-4 साल मेहनत करके अपने जब एग्जाम्स क्लियर कर चुके हो, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले चुके हो, एंड probably that is when you decide if you are into someone who is purely handling finance, और अब आपको वो next CFO level jump के लिए now is the right time for you to get into CFA. Only if you are into that segment and that becomes relevant for you, तो ही आप उस क्वालिफिकेशन को चूज करो, बिकॉज अनडाउटेडली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इफ यू फील दैट दिस इज नॉट वेयर माई हार्ट लाइज, दिस इज नॉट वेयर माई वाइब इज, तो फिर वो 3 साल जो हमने लगाए, प्लीज डोंट वेस्ट दोज प्रेशियस ईयर्स, बिकॉज आपको एग्जाम करने के लिए कॉलेज के एटलीस्ट सेकेंड ईयर में होना चाहिए, लाइक दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वो 2 साल जो हम अपने वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं CFA के लिए, वो ना करके आप कुछ और क्वालिफिकेशन अभी चूज करो। लेवल 3 तक पहुंचने के लिए इट इज जेन्युइनली नॉट इजी। आई एम गाइडिंग यू दैट येस इट विल नॉट बी अ केक वॉक, बट अगर आप एक ब्रॉडर क्वालिफिकेशन, एक सिंपलर क्वालिफिकेशन, एक मोर वाइडर इन स्कोप क्वालिफिकेशन लाइक ACCA करते हो, दैट ग्रूम्स यू, दैट प्रिपेयर्स यू बेटर फॉर CFA देन। टोटल इसमें कितने लेवल्स हैं? टोटल 3 लेवल्स हैं इन CFA, एंड ट्रस्ट मी, लेवल 3 इज नॉट इजी। तो मोटा मोटा अगर ROI की बात करूँ तो यस, डेफिनेटली CFA में मेहनत बहुत लगेगी, बट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी नेक्स्ट लेवल होगा। अब आप बोलोगे मैम आपने तो हमें और कंफ्यूज कर दिया, कैसे चूज करें इन दीज 3 क्वालिफिकेशंस, दैट विच वन इज द राइट फॉर मी आफ्टर क्लास 12 या अलोंग विद ग्रेजुएशन। सो लेट मी हेल्प यू चूज। बिना कंफ्यूज हुए प्लेन और सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। बिग 4 में जाके बड़ी कंपनीज का ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैंडल करना है, ACCA करो। Amazon और गूगल के अंदर कॉर्पोरेट बजटिंग या डिसीजन मेकिंग चलाना है, फास्ट ट्रैक रूट पे USCMA करो। JP मॉर्गन में बैठकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोर्टफोलियो को मैनेज करना है एंड इक्विटी रिसर्च करना है, देन CFA करो। एक बात याद रखना, करियर चूज करने वक्त दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी आवाज को सुनो। You need to find out what is your real passion, where your heart lies. फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, या फिर ट्रेंडिंग क्या है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर। You need to know what qualification are you genuinely interested in. Honestly speaking, आज जो आप decision लोगे, that is going to be the game changer for your entire career journey for the next 10 to 15 years. इसके लिए प्रेशर में नहीं, क्लैरिटी के साथ चूज करो। कमेंट्स में ज़रूर बताओ ACCA, USCMA या CFA। अगर कंफ्यूज हो तो प्लीज़ कम एंड मीट अस हियर एट द वॉल स्ट्रीट स्कूल। हम पर्सनली आपकी मेंटरिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ द राइट क्वालिफिकेशन फॉर यू। सो प्लीज़ कम ओवर, डिसाइड एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि which one is the right pathway for you. And yes, don't forget to share this video with that friend of mine who keeps asking you, भाई career में क्या करना है? Let me just check with Google, because Google can guide you but cannot decide for you. You should only be the only one who is deciding for your own future
with the right informed terms and conditions applied with all qualifications for that matter, ताकि whatever career you're choosing for, मतलब मैं अगर आप मेरे से मिलने कभी आए होगे तो आई एम श्योर मैंने आपको ये ज़रूर लाइन बोली होगी कि whatever qualification you choose for, एक चीज़ को याद रखो, इस क्वालिफिकेशन से आपको ज़िंदगी भर कमाना खाना है. दिस इज़ गोइंग टू बी योर अल्टीमेट करियर डिफाइनिंग क्वालिफिकेशन. तो प्लीज़ चूज़ वाइजली. कोई शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है. दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म डिसीजंस बेस्ड अपॉन विच आपका करियर ग्राफ शूट होने वाला है. कितनी जल्दी से वो शूट होगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या ROI रहेगी, all of that you need to know before making the decision. I hope I've been able to help you decide कि at least कौन सी तीनों qualifications या for any other qualification for that matter को choose करने से पहले मुझे क्या क्या सोचना है, क्या क्या deciding factors रहेंगे. Thank you so much for watching this video. Until next time, thank you. God bless.